स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। New public management to new public governance, there is a change, and that change needs to be fulfilled. That means for new public governance, you need to have something prior to it, and that fulfilling condition is to have features of new public management into your economy working. That is an argument that today I am discussing with you of a research paper that was published in one Australian university, and the scholar is from Bangladesh. So it's a case study of Bangladesh, and since India, Bangladesh and other countries of South Asia are more or less on the same curve into the development aspect. So it also, most of the things rather, would apply to Indian context also. So this paper was published in one of the best of the journal, International Journal for Public System Management, and it's a case study that we are discussing, a case of Bangladesh. And since it is a research paper, we won't go into the methodology or the literature review that the scholar has done, but extraction of the element that would be benefit for us would serve as purpose. You all are welcome to the lecture. So let me give you a background. So over here you see Mr. Jackson and Mr. Christopher Hood, doctors, professors. They came up with public management for all season named research in 1991, and they coined a term new public management. Now new public management was always existing prior to even this publication, but they gave a name to it. So new public management was, prior to their publication, the market-based managed competition and bringing in contracting out, working with specialized agencies and collaboration in between the public offices and private offices organization, and bringing managerialism, entrepreneurship into the working of the government. Apart from that, Weberian management and two business management practices all had this concept of economics, logic of economics into it, no doubt about this. So now new public management is also an umbrella term which has competition, contracts and control. It means the conditions for competition, conditions for having contracts in between various agencies of public and private, and also control measures, how to control the working, right? So this concept came into developing world in 1980s, and it was also a push by the multilateral donor agencies, international aid agencies such as World Bank and IMF. So in our country also, though we study that Big Bang LPG happened in 1991, but prior to that, even at the time of Rajiv Gandhi ji, post 1985, this was a time that the gears were shifting in our economy also. Then there is also concern that NPM failures in developed world. So NPM, when was being applied into a developed world, it means Western world, it was not all successful. Suddenly it didn't change the bureaucratic belief philosophy of from the status quo is to an action oriented or entrepreneur. It was also a failure. Apart from that, there were voices from the ground against it, because definitely when we have the management aspect caters to the one goal, and that is profit, that is return on investment. So when the citizenry was treated as its customer by the public services, there was some voices. So it's a mixed baggage, and this mixed baggage in developed countries, I have already told you how it worked in a developing country. So there are some pretty good arguments and pretty good variables on which the research scholars has judged this in Bangladesh. So public administration optional starts 28th, and you have to ensure your admission by using SC Live Code, and that would be at a very good discounted rate. We discuss in detail all about the previous year questions, doubt clearing sessions. We have 1 to 4 classes on daily basis,
12 test series. In that 8 are sectional, 4 are full length, right? So it's a comprehensive learning package. You all are welcome to join. Coming on to the researcher's argument now, in particular this case. So NPM is transitional state in between older public administration, or you can say classical version, more closed type of public administration, to public management and public governance. So ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, राइट, और यहां पर आपका लाई करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक जो गवर्नेंस से पहले। ये होना जरूरी है, ये एक इनेबलिंग कंडीशन है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ दिक्कतें होंगी, ऐसा आर्ग्यूमेंट है, राइट। सो उससे क्या दिक्कतें होंगी, चैलेंजेस क्या हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं न्यू पब्लिक गवर्नेंस की, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उससे पहले ये आर्ग्यू किया जा रहा है कुछ चीजें चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। एनपीएम भी डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करता है, मार्केट बेस्ड सर्विसेज चाहिए। मतलब जैसे आज भी अगर आप देखेंगे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनका जो गार्बेज कलेक्शन का इशू है, या सीवेज के लिए जो कलेक्शन या क्लियरिंग है, वो एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता ही जा रहा है, राइट। सो एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए इसके लिए। ये सब क्या है, ये पहले एनपीएम की प्रैक्टिसेस से होगा, और तब जाके सूटेबल कंडीशन प्रमोट होंगी एनपीजी, न्यू पब्लिक गवर्नेंस के लिए। और न्यू पब्लिक गवर्नेंस क्या है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस में सिटीजन सेंट्रिक बॉटम अप अप्रोच है, मल्टी एक्टर कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस हैं। इसका क्या मतलब है कि एनजीओज के साथ और कॉमन सिटीजनरी फोरम्स के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे कोलैबोरेटिव नेटवर्क बना लेंगे, जहां हम आइडियाज़ को, रिसोर्सेज को भी शेयर करके एक कॉमन गोल, गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस एस्पेक्ट की तरफ हम लेके जाएंगे। और ये पब्लिक सर्विस गवर्नेंस के लिए पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सब का सब होना चाहिए। और ये ही जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मॉडल है, इसी को कहा गया है न्यू पब्लिक गवर्नेंस, या टर्म किया गया है पब्लिक गवर्नेंस या न्यू पब्लिक गवर्नेंस, राइट। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू न्यू पब्लिक गवर्नेंस, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देख लें इसे, अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट अप्रोच टू पब्लिक मैनेजमेंट है। और ये क्या करता है, कॉस्ट को भी कम करना है, एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है पब्लिक फंडेड सर्विसेज में। साथ में कॉस्ट को कम करना है, एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, साथ में क्या करना है, इफेक्टिव कोलैबोरेशन करना है लोगों के साथ भी और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज के साथ भी, और वेल फंक्शनिंग नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइडर्स। इट मीन्स जो आपका सर्विस प्रोवाइड करने वाले में भी मल्टीपलिसैलिटी है, वहाँ पर भी कन्फाइनमेंट केवल जो ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है। सो ये एक एस्पेक्ट है कि जब तक आपके न्यू पब्लिक गवर्नेंस के लिए पहले एनपीएम की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, तब तक ये नहीं आ पाएगा। और क्या फीचर है न्यू पब्लिक गवर्नेंस के, और इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सो इन अर्ली 2000s, पोस्ट 2006 से लेके आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया, न्यू पब्लिक गवर्नेंस के बारे में। स्टीफन ऑसबर्न का नाम आपको याद रखना है। ये भी और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, ये एक फोरमोस्ट स्कॉलर हैं इसके, और न्यू पब्लिक गवर्नेंस के और भी बहुत सारे हैं, एंड इट इज कंटिन्यूइंग इन आवर टाइम्स ऑल्सो, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, right? He is again a researcher, doctor, teacher for the public administration in one of the universities. So what are the key features? Transparency and accountability, which was missing in old public administration, is there. Adaptive capacity. It means the new public governance, in that the state, the bureaucracy and all other actors which are working, वो क्या करेंगे, ज़्यादा एडॉप्टिव कंडीशंस में रहेंगे, एडैप्टिव कंडीशन चेंज होने की कोशिश करेंगे। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से भी ज़्यादा है, और न्यू ओल्ड पब्लिक मैनेजमेंट से तो ज़्यादा है ही। नेटवर्क्ड रिलेशंस, अब रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 वे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नॉलेज का शेयर हो सकता है, रिसोर्सेज का शेयर हो सकता है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ का मतलब है एनजीओ में, कॉमन सिटीजनरी ग्रुप्स में, पीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, फोरम्स में, यहाँ पर।
और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। ये दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर गवर्नेंस यूज हो गया है, सो मोर इनटू द पब्लिक एस्पेक्ट भी वहां पर देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट रोल है आपका ब्यूरोक्रेसी का भी, एंड द ब्यूरोक्रेसी और द स्टेट इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद अदर द स्टेक होल्डर्स टू मेक द थिंग्स बेटर। सो अभी अगर हम देखें एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं न्यू पब्लिक गवर्नेंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो यहाँ पर की एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कंपैरिजन। थ्योरेटिकल रूट्स देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ओल्डर वर्जन था वो कहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक पॉलिसी से अपने ड्रॉ करता है बेसिक्स को और थ्योरी को। और यहाँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में बताया गया कि जी जो पब्लिक चॉइस अप्रोच भी थी कि मैथोलॉजिकल इंडिविजुअल है या जो रैशनल क्रिएचर है मैन भी, और चॉइसेस मेक कर सकता है, और मैनेजमेंट स्टडीज से जो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के मॉडल से हमने थ्योरी भी ली, और सोशलॉजी और नेटवर्क थ्योरी ली है हमने ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम न्यू पब्लिक गवर्नेंस की बात करते हैं। सो नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, यूनिटरी, केवल और केवल माई बाप, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज वो ही क्या कर रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे आप लगा लीजिए डीएम और केवल और केवल बीडीओ ही हेल्प कर पा रहे हैं, और किसी के पास जा ही नहीं सकते। नल लगाने के लिए कोई और है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कोई और है ही नहीं। सो ये है ओल्डर। डिसएग्रीगेटेड, यहाँ पर डिसएग्रीगेटेड का मतलब है एक साथ, डिसएग्रीगेटेड का मतलब है बिखरा हुआ। तो यहाँ पर क्या आने लगा, यहाँ पर एजेंसीज भी बनने लगी। एजेंसीज का मतलब है उनको मार्केट के बेस्ड पे ज़्यादा एक डिस्क्रिशन दिया गया कि हमने लेटर सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमने एक गार्बेज कलेक्शन के लिए ये एजेंसी बना दी है, अब आप अपना खर्चा खुद निकालिए और आपको प्रॉफिट भी देना होगा। सो ये क्या है, डिसएग्रीगेटेड है। एक ही सरकार नहीं है, बहुत सारी सरकार के नीचे बहुत सारी एजेंसीज बन गई हैं और मार्केट प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मोटिव इनका है। प्लूरल और प्लूरलिस्टिक, यहाँ पर प्लूरलिस्टिक का मतलब है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब आ गई हैं यहाँ पर, और इसमें एक अंतर है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है और यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज बना दी गई हैं और उनको मार्केट ओरिएंटेड करा गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारी प्लूरल चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है। फोकस पॉलिसी सिस्टम्स पे ज़्यादा रहा है, पॉलिसी बना दिया उसको लागू कराना, तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पर इंटर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं आप, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर एस्पेक्ट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस मतलब इंटर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आपका कम्युनिटी, इसके अलावा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, इसके अलावा फोरम्स, सिटीजन्स के फोरम्स, इसके अलावा सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर और इवन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी। अब यहाँ इंटर गवर्नमेंट और ये इंट्रा गवर्नमेंट, ये अंतर याद रखिएगा। एम्फसाइज क्या है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कर दो, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो गया और हमने प्रोसीजर फॉलो कर लिया। ये क्या है, ओल्ड वाला है, देखिए, राइट, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा। सर्विसेज इनपुट वर्सेस आउटपुट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आया, यहाँ पर ये कंसर्न है। एम्फेसिस सर्विस प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस एंड आउटकम्स पे भी, केवल आउटपुट नहीं कि हमने जो डिसाइड कर लिया था हमने जाके लगा दिया, नहीं, कितना आउटकम आया, कितना वास्तव में हमने अचीव किया है ये। सो रिलेशंस टू एक्स्ट्रा नॉन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर, अब मतलब कि गवर्नमेंट से इतर, गवर्नमेंट से डिफरेंट जो पब्लिक पार्टनर्स हैं उनके साथ कैसा रहेगा। सो पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉलिसी सिस्टम में, ठीक है, पोटेंशियल एलिमेंट हो सकते हैं, ये एनजीओ वगैरह है, बहुत कम, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विद इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो मतलब जब मैनेज्ड कॉम्पिटिशन की बात है या एजेंसीज बनाने की बात है तो लोग बिडिंग करेंगे, टेंडरिंग लगाएंगे, टेंडरिंग करेंगे, ठीक है। और जैसे मेरे ही शहर देहरादून में जो म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन है तो गार्बेज कलेक्शन के लिए एक चेन्नई की गाड़ी आती है, चेन्नई की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वो कलेक्शन करती है, तो वैसा, और वो क्या है, प्राइवेट, लोगों से पैसे भी लेती है। यहाँ देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, जो तीसरा हम पैराडाइम देख रहे हैं न्यू पब्लिक गवर्नेंस, वहाँ पर एजेंट्स विद इन ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स में क्या है,
कि हम रिसोर्सेज को एक साथ शेयर कर रहे हैं, फिनेंसेस को एक साथ शेयर कर रहे हैं, हम नॉलेज को एक साथ शेयर कर रहे हैं, तो अब हमारा नेटवर्क हो गया है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। ये आपको एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर नए क्वेश्चन बनने की संभावना है कि क्या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक इंटरमीडिएट स्टेज था, क्या फिलॉसफी में चेंज आया। तो आप ऐसे करके 1 2 3 एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3, 1 2 3, इनमें से कोई भी 3 ले लीजिएगा और उसको कंपैरिजन बेसिस पे एक टेबल बना के आ जाइएगा। सो ये दैट वुड बी वैल्यू एडिशन इनटू योर मेंस answer writing in mains whenever you will write, right? So do remember this table, keep it with you. So elements that are required रिफॉर्म करने के लिए हमें एनपीएम की प्रैक्टिसेस लगानी ज़रूरी है एनपीजी के लिए। ये आर्गुमेंट था जो हमने रिसर्च पेपर का पहले देखा। तो जो रिसर्चर है उसने क्या किया, उसने 4 एलिमेंट लिए, डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंसी, मार्केट बेस्ड सर्विसेज और अकाउंटेबिलिटी, और इनको बांग्लादेश एज ए डेवलपिंग कंट्री में लगा के देखा। और यहाँ पे देखा कि ये अगर सही से समाज में अगर ये जो वेरिएबल्स हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, यही इस पेपर का, रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव है। सो अब ये आप याद रख लीजिए, एनपीएम में भी डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंसी की भी बात है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। सो रिसर्च स्कॉलर ने जाके बांग्लादेश में लोगों से इंटरव्यू लिया, डेटा कलेक्शन किया, देखा कि ये कितने अच्छी तरह से लग रहे हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है लोकल डिसीजन, ऑटोनॉमी देना लोगों को, ये आप जानते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि कॉस्ट एफिशिएंसी है या नहीं, डिलीवरी मैकेनिज्म सही है या नहीं, या मैनेजरियलिज्म है या नहीं, मैनेजर एस्पेक्ट है या नहीं टारगेट्स को पूरा करने के लिए, ऐसा। मार्केट बेस्ड सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग हो रही है या नहीं, आउटसोर्सिंग हो रही है या नहीं, और कहीं पर गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा, नेपोटिज्म तो नहीं चल रहा। अकाउंटेबिलिटी है परफॉर्मेंस बेस्ड, जितना अचीवमेंट करोगे। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है या नहीं, ये भी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो ये तो कंडीशन है एनपीएम एलिमेंट प्री रिक्वायर्ड फॉर एनपीजी, ठीक है। अब इसको स्कॉलर ने जाके चेक कर लिया, तो बांग्लादेश में क्या देखा कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसी वजह से वहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो क्या है, पिक नहीं कर पाया इतना, राइट, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में कर पाया। ओके, तो अब आप देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो पार्टली डिसेंट्रलाइज चीजें हुई हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेसिव माइंडसेट है, डिसेंट्रलाइजेशन करने को वहां तैयार नहीं है गवर्नमेंट। भारत में भी ऐसी स्थिति है, भले ही 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया हो, ठीक है, पर हमें यह देखने को मिलता है कि अभी भी दिक्कतें वैसी की वैसी ही हैं। एफिशिएंसी, मैनेजरियल बांग्लादेश में है ही नहीं, नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिसीजंस अभी भी बहुत सारा कंट्रोल हो रहा है वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के थ्रू। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, इंटरफेरेंस है ना। सो ये आप देखने को मिल रहा है। फिर मार्केट बेस्ड डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर डिसीजन लेती है, कॉम्पिटिटिव प्रोक्यूरमेंट नहीं है, लोकल एमपी जो हैं नेपोटिज्म करते हैं और अपने जानकार लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स में भी घपलेबाजी कर लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, सेम चैलेंजेस विद अस आल्सो, राइट। अकाउंटेबिलिटी देखिए, अकाउंटेबिलिटी केवल टॉप को है, हायरार्की बेस्ड है, तो अभी भी ये 1940 में 1930 में जी रहे हैं, राइट। नो मैकेनिज्म फॉर सोशल ऑडिटिंग, हमारे यहाँ सोशल ऑडिटिंग शुरू हुई है पर सब जगह नहीं होती है, जैसे मनरेगा जैसे जगहों पे ज्यादा है, राइट, और हर जगह नहीं है, तो ये करने की जरूरत है। नील ट्रांसपेरेंसी है बांग्लादेश में, सो हमारे यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है, रिसेंटली बढ़ाने की कोशिश करी गई है, बट अभी भी बहुत चैलेंजेस है, ठीक है। सो ये आपने देखा कि जो 2 एस्पेक्ट थे कि ये लगने चाहिए थे एनपीएम से, एनपीएम के एलिमेंट्स एनपीजी से पहले। कुछ हद तक हमने देखा कि क्या वहां पर रिसर्च स्कॉलर ने देखा। तो अनटिल एंड अनलेस ये चैलेंजेस पूरे नहीं होते हैं, आप अपने आप न्यू पब्लिक गवर्नेंस को नहीं ला सकते। सो न्यू पब्लिक गवर्नेंस की जब आप बात कर रहे हैं आज के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें आपका पहले से डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। भाई आप किसके साथ ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स बनाएंगे, कहां पर आप कोलैबोरेशन करेंगे, जब पंचायत ही एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां के लोगों को ही कुछ नहीं पता है, जब सोशल ऑडिटिंग होती ही नहीं है, जहां सिविल सोसाइटी डेवलप ही नहीं करने दी गई, जहां पर एनजीओ को खतरा मान के उनको बंद करा दिया जाए, राइट। तो ऐसा अगर होगा तो फिर वहां पर न्यू पब्लिक गवर्नेंस भी कुछ नहीं कर पाएगा।
सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और पब्लिक एड बाय शेखर नाम के टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च पेपर जो कि रेलेवेंट हैं उनका एक्सट्रैक्शन, साथ में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा बैच है उसकी भी जानकारियाँ यहाँ आपको मिलती रहेंगी, राइट। एंड वी डू हैव specialized doubt clearing sessions also sometimes. So do join Telegram group Public Administration by Shekhar. On this note, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।